Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're gonna cover time and work part 2. I hope you have already watched time and work part 1. So this session is continuation of previous session. So let's get started. 4 men and 3 women can finish a piece of work in 6 days. Whereas if there were 5 men and 7 women, they would have taken 4 days to finish the same work, finish the work. How many days will 1 man and 1 woman take to finish the work? So there is this is regarding same work. So this is also a type of question. So how to deal with this type of question? There are two approaches to solve this question. So let's see the first approach. Let's see the first approach. In first approach, let's say total work is your this much TW, and let's say a man does M unit work in 1 day. So basically, rate of work of 1 man is M, and rate of work of 1 woman, let's take W. Right? So I have taken here rate of doing work of 1 man as M and rate of doing of work of 1 woman as W. So in 1 day, 4 men will does this much work and 3 women will does this much work, and 4 women and 3 women total will do this much work in 1 day. So in 6 days, they will work this much, and this is your total work. And when 5 men and 7 women does, so this take 4 days to finish the work. And you need to find how many days will taken by 1 man and 1 woman to finish the work. I hope this equation is clear. I hope this equation is clear. Now we can easily solve this question. First take these two equations and figure out the relation between M and W. So this is cancel out 2. So this is 12M plus 9W. Just keep checking my calculations. If I commit any mistake, let me know in the comment section. This is 2 and this is 14. I hope I have done everything right till now. So this is 2M and this is 5W. So ratio of their rates, or you can say efficiency, rate of doing work or efficiency is 5:2. Now after this relation, you can take either this equation, or with this equation and this equation, any two. With this you can pick any one equation. So let's do with this. You'll get the same answer. It doesn't matter which equation you put. D M plus W. Now just put 5 at place of M and W 2 at a place of W. This is 20 and this is 6. This is 7. So D equals to 26 into 6 by 7. This is your answer. So this is the first approach to solve these type of questions. And this is also the approach that I think will be faster for most of the questions. Most of the questions के लिए ये better approach है. ठीक है, डिपेंड करता है डेटा पर. सम टाइम मैं सेकेंड अप्रोच अभी बताने जा रहा हूँ एंड आई विल ऑल्सो शो यू द केस जहां पर दूसरी अप्रोच फास्टर होगी. ओके, लेट्स सी द सेकेंड अप्रोच. सो इन सेकेंड अप्रोच व्हाट आई एम टेकिंग दैट a man take M days to finish the work. A women take W days to finish the work. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है. वहां पर मैंने रेट लिया था, यहाँ पर मैं डेज ले रहा हूँ कि उसको कितने डेज लगते हैं वर्क फिनिश करने पर. यहाँ पर 1 man finishes the work in M days. ठीक है. नाउ इक्वेशन विल बी, इक्वेशन केयरफुली देखो कैसे लिखी जाएगी इसकी. सो बेसिकली यू कैन से दैट वाज द यूनिट अप्रोच एंड दिस द एलसीएम अप्रोच, अगर तुम्हें फर्स्ट सेशन से रिकॉल हो रहा हो. ठीक है. सो दिस इज तो अगर M डेज में फिनिश करता है तो रेट कितना हो जाएगा 1/M. सो 1 man does 1/M वर्क. So 4 men will does 4/M work and 3 women will do 3/W work, and they work for 6 days. And work is your, as I told, this is the unitary method. So your work is 1 unit. So इतना वर्क तुम्हारा 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा. तो इस 6 को इधर ले. तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन. तो जनरली हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. So now we can write, I have explained the equation, now we can write the directly equations. So let's write the second equation. So that is 5/M plus 7/W equals to 1/4. And we need to figure out 1/M plus 1/W, 1/D. We have to figure out the value of D. So two equation, two unknown, figure out this thing. M और W की वैल्यू निकल आएगी and put the value of M and W, you will get the value of D. This is the approach. This is the second approach. Now if we check here, like this is
आई एम ट्राइंग टू शो यू वेयर दिस अप्रोच विल बी फास्टर। ऐसे तो देखो ये अप्रोच आई थिंक दिस इज नॉट एज गुड एज अर्लियर वाज वन गुड, है ना। यहाँ पर टाइम लगेगा, तुम खुद से सॉल्व करके देख लेना कि आंसर सेम आ रहा है। अब देखो मैं तुम्हें दूसरा डेटा देता हूँ, जिसमें देखो डेटा पे डिपेंड करता है कौन सा अप्रोच फास्टर होगा। अब मैं थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ और लेट्स से इसको मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ केयरफुली, मैं इसको 6 कर देता हूँ। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, है ना, तो यहां से देखो 1/m निकला है, इसको 9 को इधर कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा 24/10 इंटू 9, दिस इज द योर आंसर। वहां पर कितना था 26 इंटू 6, अच्छा डेटा मैंने चेंज किया ना ये 6 के लिए, फाइन। सो दिस वे देखो अब फास्टर हो गए, 1 लाइन में होगा। या फिर सपोज क्वेश्चन ये पूछा होता, या फिर सपोज मैं डेटा चेंज नहीं करता हूँ, मतलब डेटा चेंज करता हूँ बट सपोज क्वेश्चन ये पूछा होता है, क्वेश्चन में ये 7 है, इसको 7 ही रखते हैं, और क्वेश्चन पूछा होता कि लाइक ये 9 है, 9 और 10। सपोज क्वेश्चन पूछा था 9 मेन एंड 10 women, ये क्वेश्चन पूछा होता, तो क्या करते, जस्ट इनको ऐड कर दो, दिस इज योर आंसर। जस्ट इनको ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा 9/m plus 10/w। So whenever you have this type of data, then this approach will be a faster approach as compared to earlier one. But in the most of cases, first approach will be the faster. Fine. Now let's see the next question. So one man and 2 women can complete a work in 10 days. Same type of question. 2 men and so let's do the first approach. One man and 2 women can complete work in 10 days. 2 men and 3 women 6 days, and we have to figure out 4 men and 4 women days निकालना है। सो अगेन फर्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो 5m एंड दिस इज 10w and this is 4m and 12w. So this is m and 2w. Right? सही कैलकुलेशन 5, ओके सॉरी दिस इज 3 है ना, यहाँ पर 3 होगा, सिस्टम ने यहाँ पर 3 होगा, 2 कैंसिल आउट किया ना मैंने, तो 3 बचेगा। तो दिस इज 3 to 6, 3 3 9। तो दिस इज ये माइनस आएगा, इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो बेसिकली m इक्वल्स टू w। तो m इक्वल्स टू w आ रहा है, तो सिंपल कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, ये या फिर ये ले लो, या फिर ये और ये ले लो, है ना, पिक एनी 2 इक्वेशंस। सो लेट फर्स्ट में पुट करते हैं, तो m को w पुट कर दो, w को m पुट कर दो, तो बेसिकली दिस इज 3w एंड दिस इज 8w। तो दिस गेट कैंसिल्ड एंड दिस इज 30/, तो तुम्हारा d का वैल्यू कितना आ गया 30/8 एंड दैट इज 15/4। So 15/4 is the answer. Okay, I hope this approach is clear. Now let's see the second approach. अब वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई थिंक सेकेंड अप्रोच से फास्टर हो। देखो 1/m 2/w 1/10, इक्वेशन क्लियर है। दिस इक्वेशन आई होप इक्वेशन लिखना आ गया तुम लोगों को, 1/6 एंड वी हैव टू फिगर आउट 4 men and 4 women 1/d। ओके, अब देखो ऐड करने पर तो सेम नहीं आ रहा है, ऐड करने पर 3 और 5 आ रहा है, बट सब्ट्रैक्ट करने पर देखो सेम आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पर 2 - 1 3 - 2 और 1/6 - 1/10 and this is 60 and this is 4, so this is 15 basically 1/15। so 1/m plus 1/w हमारा 1/15 आ रहा है, तो 4 कितना आ जाएगा, 4 इधर, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, है ना, हमें d निकालना है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4, जो सेम आंसर आ रहा है। सो व्हाट आई फाइंड कि लाइक इस तरीके से थोड़ा आसान हो रहा है, ठीक है। इस लाइक अगर तुम ऑब्जर्व कर लोगे, यू डोंट नीड टू डू दीज स्टेप्स,
You will directly just do this thing. You will directly do this thing and divided by 4, that will be your answer. बहुत आसानी से हो जाएगा. ये सब स्टेप एग्जाम में नहीं करोगे. वंस यू आर क्लियर, है ना, वंस एक बार तुम्हें दिख जाता है कि ऐसे हो रहा है, जस्ट यू विल सबट्रैक्ट. सो दैट्स व्हाई योर टाइम विल सेव एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व फास्टर. सो लाइक दिस डिपेंड ऑन डेटा, कि डेटा कैसे दिया है. ओके, so this is the last question of this type. Let me just check. 6 man, 10 days, or 8 man. Okay, this is your homework. Try and let me know your answer in the comment section with slide number. ठीक है, slide number के साथ अपना आंसर मुझे comment section में बताना. Now let's see the next type of questions. अच्छा, I think efficiency के बारे में भी मैंने थोड़ा पहले बताया. तो efficiency देखो क्या होती है. efficiency और rate दोनों सेम है. ठीक है, efficiency और rate. efficiency means तुम कितना efficient हो काम करने में. रेट इज लाइक एक डे में, एक आवर में कितना तुम काम करते हो, एक पर्टिकुलर यूनिट में, पर्टिकुलर टाइम की यूनिट में तुम कितना काम करते हो, दैट इज योर रेट. ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी एंड हेंस टेक्स 12 days लेस टू कंप्लीट अ वर्क एज कंपेयर टू बी. फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क व्हाइल वर्किंग टुगेदर. ओके, सो ए इज थ्राइस एफिशिएंट. And hence takes 12 days. Like, so अगर A thrice efficient है, so A will take 1/3 time to finish the work, है ना. तो अगर like B 3T time लेगा, 3T 3D days लेगा to finish the work, so A will take D days because A is thrice efficient as B, तो 1/3 time लेगा इसका. And this difference is given. This difference is given. So the value of D equals to 6. So value of D equal to 6. So A will take 6 days to finish the work and A will take 18 days to finish the work. Number of days together they will finish the work. तो इसका डायरेक्ट क्या है, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं ना, 6 18 and 18 plus 6. We can do this thing directly. So this is answer is your 24 and 6 4. So that is 4.5, I think. 4.5 days will be your answer. Okay, ये पता ही कहाँ से आ रहा है ना. You don't need to do like this. 2 persons के लिए directly ऐसे कर लो, that you will get the answer. A is twice as efficient as B and B is thrice efficient as C. Okay, so in this case, like this is also a type of question. Simply take the ratios of their efficiency. Efficiency is basically rate of work. A is twice efficient as B. ठीक है, B is thrice efficient as C. तो अगर इनको मिक्स कर दें तो मल्टीप्लाई दिस विथ 3, सो दिस विल बी द रेशियो. सो दिस इज द, तो बेसिकली ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क 6x है, बी का 3x है एंड सी का x है. एंड इफ ऑल 3 टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days. सो ऑल 3 अगर वर्क करते हैं तो कितना वर्क करेंगे, 6 3 9 plus 1 that is 10 into in 10 days. So this is your total work. Find the difference in the number of days taken to complete the work when A and B do together and when B and C together. Okay, so your work is 100x. Your work is 100x, and so number of days when A and B work, so that is this one 100 by 9, and when B and C, so इनका difference हमें निकालना है. B and C that is 4, so 100x upon 4. So this is like 100 upon 9. एंड दिस इज 25 आ जाएगा. तो पॉजिटिव वैल्यू में लेना है, तो बेसिकली इस साइड होगा. सो लाइक 225 माइनस 100, 225 माइनस 100, 125 by 9. दिस विल बी योर आंसर. दिस आर द नंबर ऑफ डेज. ये डिफरेंस होगा. x इज ट्वाइस एज फास्ट एज y. ठीक है, x इज ट्वाइस एज फास्ट एज y एंड हेंस टेक. ओके, तो सो दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का किया था. ये क्वेश्चन, ये दोनों सेम है. सो जस्ट डू दिस एज अ होमवर्क एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद स्लाइड नंबर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ए कैन डू 4/5 ऑफ वर्क इन 20 days. सो ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें जो वर्क दिया होगा समटाइम फ्रैक्शंस में दिया होगा, फ्रैक्शंस की वैल्यूज होंगी, तो कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ. तो ए can do 4/5 of work in 20 days and B can do 3/4 of the same work in 15 days. तो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो
4/5 अगर वो वर्क 20 यूनिटरी मेथड यूज करो 20 डेज में करता है, तो 1 यूनिट ऑफ दैट वर्क विल डू इन 5/4 दैट इज 25 डेज। अगर ए 4/5 वर्क 20 डेज में करता है तो ए विल फिनिश द दैट वर्क इन 25 डेज। अभी हमने यूनिटरी मेथड से निकाला। सिमिलरली फॉर बी, अगर बी 3/4 वर्क 15 डेज में करता है तो जो वर्क है टोटल वर्क 1 यूनिट वर्क वो कितने में करेगा, 4/3 दैट इज 20 डेज। So B will do in 20 days. I hope this is clear. C alone completes the work in 1 day. And C completes that work in 1 day. B and C together can complete 3/4 of the work. 3/4 of the work. So B and C तो टुगेदर देखो कितने डेज में करेंगे, कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेंगे, 20 into 1 दिस इज 20 + 1, ये मैंने बता रखा है AB/A + B, सो 20/21 दिस इज द दे विल फिनिश द टोटल वर्क इन दिस मच डेज एंड 3/4 वर्क दे विल फिनिश इन दिस मच दैट इज 5 दैट इज 7, सो 5/7 days। इन 5/7 days दे विल फिनिश द 3/4 ऑफ द सेम वर्क। आई होप दिस इज क्लियर। पहले यूनिटरी मेथड से निकाल लो कि ए पूरे काम को कितने डेज में फिनिश करता है, बी पूरे काम को कितने डेज में फिनिश करता है, जस्ट यूनिटरी मेथड है ना। 4/5 अगर इतने डेज में करता है तो 1 यूनिट वर्क कितने डेज में करेगा, निकल आएगा यूनिटरी मेथड से। सी का दिया हुआ है। नाउ बी सी का आई हैव जस्ट यूज दिस मेथड, फिगर आउट कि बी एंड सी टुगेदर विल फिनिश द टोटल वर्क इन दिस मच डेज। सो 3/4 वर्क कितने डेज में करेंगे, इसका 3/4 निकाल लो एंड 5/7 इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। A can do 2/3 of a job in 3/4 of the time, in which B can do 4/5 of it. Okay. B can do 3/4 of the job in 2/3 of the time that C would take to do 5/5 of the work. Okay. Okay. So this seems to be quite complicated. If C can do the work in 10 days, how many days A and B together take time to do the work? Okay. So what I think starting point will be this one. This is the value that we have, है ना? And we'll just use the unitary method. So C can do a work in 10 days. C would take to do 5/4 of the work. 5/4 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 5/4 वर्क करने में कितना डेज लगेगा ना। C को 5/4 वर्क करने में इतना डेज लगेगा अगर वो एक वर्क को 1 यूनिट वर्क को 10 डेज में करता है, ठीक है। 2/3 ऑफ दैट टाइम, तो इस टाइम का 2/3, तो इतना टाइम लगता है। सो दिस इज द टाइम, और इस टाइम का 2/3, इस टाइम का 2/3 हो गया। बी कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब। तो देखो जस्ट यूनिटरी मेथड में यूज कर रहा हूं, तुम्हें थोड़ा फोकस के साथ समझना है, यू विल बी एबल टू गॉट इट। तो देखो सी 10 डेज में वर्क करता है। अब मैं यहां पर पहुंच गया हूं। व्हाट इज दिस, दिस इज द टाइम टेकन बाय बी टू डू 3/4 ऑफ द वर्क। बी जो 3/4 वर्क है इतने डेज में कर लेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा, 10 into 5/4 2/3 into 4/3। so this is how much, 4 get cancelled, 100/9, 100/9। so B will take 100/9 days. B will take 100/9 days to finish the work. Similarly, let's figure out for A. I hope till here everything is fine. This seems to be quite little complicated, but we can easily handle using the unitary method. Now B can do 4/5 of it. B can do 4/5 of it. तो अगर B टोटल वर्क इतने डेज में करता है तो 4/5 करने में इतना टाइम लगेगा, 4/5 वर्क करने में इतना टाइम लगेगा। एंड 3/4 ऑफ दिस टाइम, इस टाइम का 3/4 इतना टाइम, इस टाइम में A can do 2/3, A can do 2/3। so A can do complete work in 100/9, 4/5, 3/4 into 3/2, 3/2। so this is the time taken by A। कितना आ रहा है, 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो, दिस इज 10। तो A और C सेम टाइम ले रहे हैं।
सो नाउ वी हैव फाइंड आउट कि ए और बी सी कितना टाइम लगेगा. अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर. सो ए एंड बी टुगेदर विल टेक 100 by 9 into 10. So basically we can write it 100 by 9 and 10 plus 100 by 9. So this is 100 upon 190 days will be your answer. Okay. So now let's see the last type of question, like this type of question for today. Okay. So Sam can complete a work in X plus 4 days. Anna take X plus 16 days to complete the same work. Whereas working together both can complete work in X days. Find the value of X. अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना. सिंपल जो बेसिक मेथड अभी तक सीखे उनसे सॉल्व कर सकते हो. तो जस्ट ट्राई इट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द बेसिक जो अभी तक हमने सीखा है, तुम्हारा एलसीएम अप्रोच या फिर यूनिटरी अप्रोच. बट दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन देयर इज अ शॉर्टकट. अब ये शॉर्टकट मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी हैव यूज सिमिलर शॉर्टकट इन टीएसडी. अगर तुम्हें याद हो, टीएसडी में हमने ये शॉर्टकट यूज किया. वहां पर क्या होता था, बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट ही सेम है. देयर इज नो डिफरेंस टीएसडी और टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन में, है ना. मैंने कई बार ये बात तुम्हें बताई होगी. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें दिखेगा इक्वेशन सेम बनती है. डी इक्वल टू एस टी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर डब्ल्यू और आर और डी होता है तुम्हारा, है. तो दैट्स वाई ये दोनों कॉन्सेप्ट ही सेम है. तो इसमें क्या होता था, ए और बी तो यहाँ पर ही मीट करते थे. तो ये देखो, अब इस डिस्टेंस को मैंने टोटल वर्क मान लिया. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न इन द टीएसटी. तो इस टोटल डिस्टेंस को मैंने वर्क मान लिया. अब दोनों ने टुगेदर वर्क किया तो दे रीच हियर. तो दोनों ने साथ में जितना काम किया, ठीक है, दिस वाज द टाइम. एंड देन आफ्टर दैट इट टेक्स दिस मच टू रीच हियर एंड बी टेक्स दिस मच टाइम टू रीच हियर. तो इसके बीच रिलेशन क्या था, टी स्क्वायर T1 T2. अब डी की जगह वर्क रख दो, डी की जगह वर्क रख दो तो टाइम की जगह तुम्हारा डेज आ जाएगा. तो दिस इज डी स्क्वायर इक्वल टू D1 D2. फाइन, मैंने जल्दी से समझा दिया. तुम्हें खुद से एनालाइज करके यू हैव टू रिलेट बोथ द थिंग. मैंने तुम्हें एक हिंट दी है ना. यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज टू थिंग्स आर सेम. तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा. Sam can complete a work in X plus 4 days. Anna takes X plus 16 days to complete the same work, whereas working together both can finish the work in X days. So X square equals to 4 into 16. So X equals to कितना आ जाएगा, 64 8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ये जितने ज्यादा डेज लेता है उसका तुम्हें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है. तो रिलेशन तुम्हारा ये देख लो यहाँ पर, दिस इज द रिटर्न हियर. ए एंड बी X डेज में वर्क करते हैं. ए उस वर्क को अकेले करने में ए डेज ज्यादा लेता है, बी सेम वर्क को करने में बी डेज ज्यादा लेता है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स और ए बी के बीच में, ठीक है. ये टीएसडी वाला याद रखो, वहीं से है सेम. सो दिस द सेम क्वेश्चन, जस्ट मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट और इसको लेंदी क्वेश्चन बना दिए. यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजिली. लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर 16 एंड योर आंसर. ओके. Okay, one more type. So these are the questions जहां पर तुम्हारा मनी इन्वॉल्व होगा. मतलब तुम वर्क करोगे ना तो तुम्हें कुछ वेजेस मिलेंगे, यू विल गेट द सम अमाउंट. सो हाउ दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट अमाउंट, अच्छा जिसका एफिशिएंसी, एक देखो अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एफिशिएंसी, डेज एंड वर्क. तो तुम्हारा अमाउंट जो तुम्हें मिलेगा, तुम जो भी काम करोगे यू विल गेट वर्क लाइक पेड फॉर दैट. तुम्हारी इफिशिएंसी ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, यू विल गेट मोर पेड जितना तुम वर्क करोगे, ठीक है. अच्छा, अगर डेज कॉमन है तो इफिशिएंसी के रेशियो में पे होगा, है? जो पेमेंट होगा तुम्हारा वो इसके रेशियो में होगा, ई और डी. इफिशिएंसी और कितने डेज तुमने काम किया है, दैट विल गिव यू द वर्क. सो विल गेट पेड इन द रेशियो ऑफ योर वर्क, जितना तुमने वर्क किया होगा ई इंटू डी. ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी इफिशिएंसी ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा पेमेंट मिलेगा, यू विल गेट पेड. अगर डेज सेम है तो इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, अगर इफिशिएंसी सेम है तो डेज का रेशियो हो जाएगा. सिंपल सी बात है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू विल गेट पेड फॉर द वर्क दैट यू विल डन, ठीक है. सो अजय एंड विजय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days respectively. Both work for 10 days and quit, after which Sanjay complete the work in 8 more days.
इफ दे टुगेदर गेट पेड 3600, फाइंड द शेयर ऑफ संजय। तो पहले क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। लेट्स टेक टोटल वर्क तुम्हारा 60 यूनिट है, तो ए का जो अजय का जो रेट आ जाएगा दैट इज 3, जो विजय का रेट आ जाएगा दैट इज 2 यूनिट पर डे, है ना, 2 यूनिट पर डे। So they will work for 30 days. So in 30 days, Ajay will does how much work? 30 unit. And in 10 days, Vijay will do 20 unit work. Fine. And remaining work is 10 unit. So we don't need this thing. We don't need this thing. So in the remaining 8 days, Sanjay will finish the work. It means Sanjay will do the 10 unit work that is left out. Now you need to divide this 36. So 36 will be divided in this ratio, that is 3:2:1. And so we need to find 1/6 into 3600, that is 600. 600 will be paid to the Sanjay. Sanjay will get 600 rupees for this work that he has done for 8 days. Okay, I hope this is clear. And so this is here redundant data. This is not required also. Amal can complete a work in 10 days and Bimal can complete it in 8 days. Okay, this is similar question. Solve this and let me know in the comment section with the slide number. Same question है, कोई change नहीं, just data change है. Let me just check. हाँ, data just change है. Let me know answer in the comment section. John gets 57 per hour. Okay, so this is your CAT question. ये अभी recent CAT में I don't remember, maybe from your 18 या 19, but ये CAT का question है, recent CAT का. John gets 57 per hour of regular work एंड 114 पर आवर फॉर ओवर टाइम। तो अगर रेगुलर आवर में वर्क करेगा तो जॉन को 57 रुपीज मिलेंगे पर आवर एंड 114 रुपीज मिलेंगे अगर वो ओवर टाइम करेगा। ठीक है, ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स टोटल काम करता है वो, एंड हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स इज 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स। ओके, तो ये तो लाइक बेसिक क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका तो बहुत ज्यादा टाइम एंड वर्क से लेना देना भी नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। लेट्स से जॉन वर्क फॉर एक्स आवर ओवर टाइम, क्योंकि देखो कैसे भी ले सकते हो, इसके साथ मुझे एक्स मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है। तो रिमेनिंग 172 माइनस एक्स, ही हैज डन द रेगुलर वर्क, सो 57, सो दिस मच अमाउंट जॉन विल गेट फॉर डूइंग द रेगुलर वर्क, है ना। मैंने क्या किया, एक्स आवर सपोज उसने काम किया है ओवर टाइम, सो 172 माइनस एक्स आवर्स वो काम करेगा रेगुलर वर्क, टोटल एक्स आना चाहिए ना, टोटल 172 आवर्स उसने काम किया, तो इतना अमाउंट उसे मिलेगा रेगुलर वर्क के लिए। एंड दिस अमाउंट ओवर टाइम के लिए उसे कितना मिलेगा, 114 इंटू एक्स, एंड दिस अमाउंट है ना, यही है ना, over time wala 15%, so this amount is 15% of this. So this is your equation, just solve, you'll get the value of x. So 57 twice, and this is 172 minus x, this is 20, 200 upon 15, this is 340, 350, so this is 172 40 upon 3 plus x, that is 43 upon 3, x equals to 172, this is 4, so x equals to 12. So what is question, then how many hours did he overtime? So overtime को हमने x लिया था and that is 4, that is 12, not 4, that is 12. So this simple like basic arithmetic का question, this is even not from time and work. In a factory's total daily wages of 20 men, 30 women and 36 children is 78 rupees. Okay. So 20 men, 30 women and 36 children का daily wage इतना। Ratio of work done by a man, a woman and a child in this ratio. तो बेसिकली इनके रेट का वर्क दिया हुआ है ना, रेट का, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज 3x 2x एंड x। तो अगर एक मैन इतना वर्क करता है, ये इतना वर्क करता है, इतना वर्क करता है, सो दैट इज 20 men will do this much work, 30 women will do this much work and 36 children will do this much work. So how much total work is 60, 120, 156x. So ये टोटल वर्क तुम्हारा एक दिन में हो रहा है, एंड फॉर दिस दे गेट पेड
78 rupees. 78 rupees. So x 1 by 2 rupees. x 1 by 2 rupees. So मतलब चाइल्ड तुम्हारा x वर्क करता है ना, लाइक, तो x की वैल्यू 1 by 2. 1 by 2 rupees you get paid for x unit of work. Okay. What will the total wages for 15 women? So 15 men, not women, 15 men. So 15 men will do how much? This much work. 21 women will do this much work, and 13 children will do this much work, and for 18 weeks. So this is for one day. 18 weeks, 18 into 7. So just do the calculation. इसका 1 by 2 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 45, 42, 45, 42, 30, 7. चलो कैलकुलेशन कर लेना. 7, 72. ओके, चेक कर लेना. आई होप आई हैव डन द कैलकुलेशन राइट. और इसमें 1 by 2, so that is 9. So 63. 17 into 60. This is your answer. Just do the calculation. This is the wage that will be that 15 men and 21 women and 30 children will get paid for 18 weeks work. Okay. So this is it for this session, and make sure you notes proper, understand the type of the questions. So whenever you see the new question of new question made from this type, you will be able to handle that. Remaining part of time and work is that is your tap wala hai na, water tap. So that we'll do in the next session. So you make sure you like this session. I hope you have liked it, and join the Telegram channel and as well as group also for discussion. Subscribe to this YouTube channel as well as share with your friends who are preparing for CAT and other examinations. Also join our Facebook group. So that's it for today. Let's see you in the next session.